Hello students, welcome to chapter number 12, Fun with Magnets part 5. This is Karan Sonagra. Today we will see how to make magnets, then we will see an activity related to that, care and storage of magnets and uses of magnets. So let us start our today's session with making magnets. So the question arises, how can you make the magnets? So a piece of iron, it can be turned into magnet with the help of permanent magnet or with the help of electricity. It means if you want to turn this piece of iron into magnet, you can do it by two way, either by using the permanent magnet and by using electricity, right? So there are two methods are given here. The one method is single touch method and another method is double touch method. So these both methods are dependent on permanent magnet, right? So by using the permanent magnet you can turn this piece of iron into magnet by सिंगल टच मेथड और बाय डबल टच मेथड. मतलब सिंगल टच मेथड में यू विल यूज ओनली सिंगल बार मैग्नेट और सिंगल परमानेंट मैग्नेट, while in double touch method you would use this two bar magnets or you can say two permanent magnets. So to convert the piece of iron into magnet, what you have to do, so you just have to start stroking with a permanent magnet in the same direction for 15 to 20 times. मतलब कि एक ये आयरन ब्लॉक है, राइट, उसके ऊपर ये एक बार मैग्नेट लेके उसको एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली लेफ्ट से लेके राइट तक आप ले रहे हो, राइट, तो लेफ्ट से राइट तक कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में आपको उसको स्ट्रोक करना है फॉर 15 टू 20 टाइम्स. सो इफ़ यू स्ट्रोक विद द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल से हम लोग स्ट्रोक कर रहे हैं, राइट, इन सिंगल टच मेथड. सो द एंड यू स्टार्टेड, मतलब कि दिस वन विथ बिकम्स द नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल, एंड ऑन द अनदर साइड साउथ पोल विल जनरेट. सो दिस बार magnet will convert this piece of iron into magnet with this north pole and साउथ पोल. मतलब कि जो पोल आपका बार मैग्नेट का है वो पोल जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर बनेगा, मतलब कि यहाँ पर बनेगा. अगर यहाँ पर आपने साउथ पोल से स्टार्ट किया होता तो ये वाला कौन सा बनता, साउथ पोल बनता. सिमिलरली ओवर हियर इन डबल टच मैथड दे आर यूजिंग टू बार मैग्नेट्स और यू कैन से टू परमानेंट मैग्नेट्स. उसमें एक एंड पे एक बार मैग्नेट का एक पोल लेते, इट मीन्स यहाँ पर नॉर्थ पोल लेते, और दूसरे एंड पे दूसरे मैग्नेट का दूसरा पोल लेते, मतलब कि साउथ पोल लेते, और उन दोनों को उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हैं या तो उल्टी डायरेक्शन में टच करवाते हैं. से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप नॉर्थ पोल को जो टच करवा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि साउथ पोल को लेके वो लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, right? So this portion would become north and this portion would become south. So this is how this piece of iron becomes a magnet. So mainly to make a magnet we just have to use permanent magnet or electricity. So if we have a permanent magnet we can stroke the piece of iron and turn it into the magnet. So how many times we have to stroke, 15 to 20 times approximately, or more than 20 times if it is not converting into the magnet, right? And also the pole of bar magnet that we are stroking,
तो उस पीस ऑफ आयरन में जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देयर वुड बी द नॉर्थ पोल, और यू कैन से सिमिलर पोल विल generate. So here one activity is given कि how to make a magnet. So to perform this activity you need a bar magnet, an iron nail, a magnetic compass and pins. What you have to do, just clean the iron nail and उसके बाद ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को you just have to stroke from left side to right side. How many times? 15 to 20 times. Then after you have to place this iron nail near to the compass and check whether the needle of compass is deflecting or not. And also you have to place this iron nail to the common pins. So if this iron nail is attracting the common pins or not. If they are not attracting the common pins, so what you have to do, you have to stroke it again with the bar magnet with the same pole in the same direction. और फिर से 10-12 बार या तो 10-15 बार उसको स्ट्रोक करना है in the similar direction with the same pole. And then again check it whether it is deflecting the needle of compass or it is attracting the pins or common pins or not. मतलब कि ये मेथड में आप कितने मैग्नेट्स यूज़ कर रहे हो? ओनली वन. सो इट इज़ द सिंगल टच मेथड, राइट. एंड जो भी पोल आप घिस रहे हो या तो जो भी पोल से आप स्ट्रोक करवा रहे हो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो दैट पॉइंट बिकम्स द सिमिलर पोल. मतलब यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये कौन सा बनेगा? नॉर्थ. और सेकेंड कौन सा बनेगा? साउथ. So you have to perform this activity at your home if possible. Then write it down, the observation and what you find and what is the science behind it. Now let's move on to our next topic, which is care and storage of magnets. So magnets जो होते हैं उसकी केयर करना और उसको अच्छे से स्टोर करना भी ज़रूरी होता है, राइट. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट तो दैट मैग्नेट विल लूज देयर मैग्नेटिज्म. और अगर मैग्नेटिज्म लूज हो गया, मैग्नेटिज्म चला गया, तो फिर वो मैग्नेट हमारे किसी काम का रहता नहीं है, राइट. सो द मैग्नेट्स कैन लूज देयर मैग्नेटिज्म in a four way. First, if you dropped it from a height. Second, if you exposed it to heat. Third, if you hit with a hard object. And fourth, if you are not storing it properly. तो ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर या तो हीट में रखने पर या तो हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराने पर या तो उसको अच्छे से स्टोर ना करने पर वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है, राइट. सो द मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड सच दैट देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज प्रिजर्व्ड. हमें उस तरह से स्टोर करना चाहिए जिस तरह से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनी रहे. तो बार मैग्नेट्स जो होते दे आर स्टोर्ड इन द पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स टुगेदर. बार मैग्नेट कैसे होते? वो पेयर में रखे जाते विद द अनलाइक पोल्स टुगेदर. सो हियर यू कैन सी हियर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आर गिवन एंड सेकेंड, और ये दिस इज द फर्स्ट बार मैग्नेट, दिस इज द सेकेंड बार मैग्नेट. तो उनके बीच में ये पीस ऑफ वुड रख दिया है. और दूसरा जो मैग्नेट है उसका यहाँ पर साउथ है तो उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर रखा है और दूसरा पोल यहाँ पर है. तो ये पेयर कौन सी हुई? नॉर्थ साउथ की. सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ की. सो इस तरह से उसको रखा जाता है. तो दो मैग्नेट्स के बीच में पीस ऑफ वुड रख दो. देन a soft iron piece which is called keeper is placed across the poles and piece of wood is placed between the magnets. तो जो अगर हॉर्स शू शेप में मैग्नेट है तो वहाँ पर एक आयरन का कीपर्स होता है which is used to store the magnet. So that soft iron keeper is placed across both poles. तो उसको इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे रखा है. तो दिस इज कीपर, राइट. तो वो उसको इस तरह से स्टोर किया जाता है.
तो उसकी केयर करने की, या तो मैग्नेटिज्म लॉस होने के चांसेस कब रहते हैं, व्हेन यू ड्रॉप द मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट, व्हेन यू एक्सपोज इट टू द हीट, व्हेन यू हिट इट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, and if you are not storing it properly. So these are the major factors which affects to lose their magnetism. Now let's टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. तो हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है वहाँ पर हम लोग मैग्नेट्स कब यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो इन द रेफ्रिजरेटर डोर, तो रेफ्रिजरेटर डोर को आप लोगों को पता होता है कि जब आप उसको धीरे से पुश कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली इट गेट्स सेट, और तो वो बंद हो जाता है अपने आप. तो बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स इट गेट्स शट डाउन. देन द स्टिकर्स विथ मैग्नेट्स, के जो कुछ कुछ स्टिकर्स होते हैं जिसके पीछे मैग्नेट लगे हुए होते हैं, दैट वी स्टिक टू द फ्रिज डोर, या तो कबर्ड की जो आयरन के कबर्ड्स होते हैं उस पर हम लोग ये स्टिकर्स चिपका देते हैं. इन इलेक्ट्रिक मोटर, स्पेशली इन द किचन मिक्सचर, जनरेटर, डोरबेल, म्यूजिक स्पीकर्स एट्सेट्रा वर्क विद द मैग्नेट्स. तो ये जो डोरबेल है, म्यूज़िक स्पीकर है, जनरेटर है, किचन मिक्सचर है, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होती है वहाँ पर भी मैग्नेट्स का यूज़ होता है. ऑल्सो मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स. तो जो कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स है वहाँ पर भी मैग्नेट्स यूज़ होते हैं. सेकेंड थिंग, इन क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम डेबिट कार्ड जो होते हैं वहाँ पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, या तो आप बोल सकते हो कि मेटल स्ट्रिप होती है, विच इज़ कैरिंग मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर दी इंफॉर्मेशन. तो वहाँ पर भी मैग्नेट्स यूज़ होता है. जंकयार्ड में भी मैग्नेट्स यूज़ होते टू पिक द आयरन ऑब्जेक्ट्स. देन ऑल्सो इन द मैगलेव ट्रेन आप बोल सकते हो कि फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन मतलब कि जो मैग्नेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, टू लिफ्ट होल ट्रेन इनटू द एयर. तो वो जो उसके रेलवे ट्रैक होते हैं उससे वो एक से 1 फीट के अराउंड वो ऊपर रहती है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. सो दैट मैग्नेटिक लेविटेशन इज ऑल्सो यूज्ड to run the fast trains, or you can say the maglev trains. Then induction cookers are getting popular because of their clean, fast and inexpensive. So they are using the electromagnetic energy to cook. So for cooking also the magnets are used. So here these are the uses of magnets in refrigerator, in stickers, in electric motors, where you are using it in mixture, generator, doorbell, music speaker, in computer, telephone, credit card, ATM card. Then junkyard for maglev train, for cooking. These are the all purpose where we are using the magnets in our day to day life. So that's it in this video. I hope you have enjoyed it a lot. Thank you and have a nice day.